ورلڈ کلاسک سٹوریز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی کہانی ایک گیدڑ کے گرد گھومتی ہے جی، جو جنگل میں رہتا تھا اور اپنے آپ کو بہت چلاک سمجھتا تھا۔ اپنی چلاکیوں کی وجہ سے اس نے اکثر دوسرے جانوروں کا حق بھی مارا تھا، لیکن ایک روز وہ اپنے بنائے ہوئے جال میں خود پھنس گیا۔ آئیے سنتے ہیں۔ گرمیوں کے دن تھے۔ ایک گیدڑ سخت بھوکا تھا۔ جنگل میں اس کو کہیں بھی کوئی شکار نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج جنگل میں کوئی شکار نہیں آ رہا، یوں لگتا ہے جیسے تمام پرندے اور جانور میری چلاکی اور مکاری کو پہچان گئے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ بھوک سے تو میری جان نکل رہی ہے۔ جنگل میں چلتے پھرتے ہوئے گیدڑ نے خود کلامی کی۔ گیدڑ روزانہ خوب پیٹ بھر کے کھاتا تھا، مگر آج تو اس کا دن بہت ہی برا ثابت ہوا تھا، کیونکہ وہ بغیر کچھ کھائے رہنا اس کے لیے مشکل بھی ہو رہا تھا۔ سارا جنگل چھان مارنے کے بعد وہ مایوسی سے کوئی نیا طریقہ سوچنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتا، اس نے سامنے دیکھا۔ اس کی نظروں کے سامنے گاؤں کے لہلہاتے کھیت تھے، ہرے بھرے کھیت چاروں طرف گاؤں میں پھیلے ہوئے تھے۔ گیدڑ نے سوچا کہ وہ اس گاؤں میں چلا جائے تو ضرور کوئی نہ کوئی شکار مل جائے گا۔ اس گاؤں کی طرف چلتا ہوں، لگتا ہے یہاں سے کچھ نہ کچھ مجھے ضرور ملے گا۔ کوئی ہرے بھرے کھیتوں میں خرگوش یا کوئی چھوٹا جانور جو میں آرام سے شکار کر کے کھا لوں گا۔ نہ صرف اس سے اپنا پیٹ بھر سکتا ہوں، بلکہ شاید اگلے دنوں کے لیے بھی رکھ لوں گا۔ یہ سوچ کر گیدڑ گاؤں کی طرف بڑھنے لگا تو یکدم رک گیا، کیونکہ جنگل اور کھیتوں کے درمیان اس کو ایک دریا کو پار کرنا تھا، جس کو پار کرنا گیدڑ کے لیے بہت مشکل تھا۔ گیدڑ نے دریا کے کنارے جا کر کوئی پل تلاش کیا۔ پل دیکھتا ہوں، کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، کوئی راستہ جس پر سے چل کر میں دوسری طرف چلا جاؤں۔ کیا کروں؟ لمبی چھلانگ لگاؤں؟ ارے نہ بابا نہ، لمبی چھلانگ سے تو میں گر سکتا ہوں۔ اتنی دیر میں اسے ایک ترکیب سوچی، کیونکہ اسے سامنے ہری ہری گھاس پر ایک اونٹ گھاس کھانے میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ گیدڑ کا چلاک دماغ چلنے لگا اور اس کے دماغ میں ایک دم خیال آیا، کیوں نہ اس اونٹ کی مدد لی جائے۔ گیدڑ نے اونٹ کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم بھیا اونٹ، آپ کیسے ہیں؟ مجھے کل نومری خالہ نے بتایا تھا کہ آپ کی صحت خراب تھی، مجھے آپ کی صحت کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ آپ نے حکیم ریچھ سے دوائی لے کر کھانی تھی، اللہ بھلا کرے۔ حکیم ریچھ کا بہت سمجھدار اور قابل حلیم حکیم ہے۔ اونٹ نے گھاس کھاتے ہوئے گردن اوپر اٹھائی اور مسکرا کر بولا، گیدڑ بھائی، تم بھی گیدڑ ہی ہو۔ میری صحت ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہے، ذرا موسمی تبدیلی کی وجہ سے نزلہ کھانسی ہو رہی تھی۔ تم خود ہی دیکھ لو میں کتنے مزے سے گھاس کھا رہا ہوں۔ اگر میری صحت خراب ہوتی تو میں گھاس کھا سکتا؟ گیدڑ نے اونٹ کو اپنی باتوں میں پھنستا نہ دیکھ کر اپنا لہجہ بدل لیا اور بولا، ارے اونٹ بھیا، آپ کی صحت تو واقعی قابل رشک ہے۔ آپ کو قدرت نے بہت صحت مند زندگی دی ہے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہو سکتا ہے لومڑی خالہ نے ہی کسی اور اونٹ کا بتایا ہو۔ ارے 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 اونٹ بھیا، تم یہ سوکھی اور بدبودار گھاس کیوں کھا رہے ہو؟ اس کو کھا کر تو تم واقعی بیمار ہو جاؤ گے۔ تم فوراً اس گھاس کو کھانا چھوڑ دو۔
मैं तुमको हरी हरी घास का बताता हूँ, जिसको खाने से तुम्हारी सेहत मजीद अच्छी हो जाएगी। गीदड़ ने उसको अपनी बातों की तरफ लाने के लिए कहा। ऊंट ने गीदड़ की बात सुनकर कहा, अपने देश की सूखी घास मुझे मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र है। गीदड़ ने ये निशाना भी खता होते महसूस किया तो फौरन बोला, ऊंट भैया, तुम तो नाराज ही हो गए। भैया, मुझको तो तुम्हारी सेहत की फिक्र थी। मेरी बात मानो तो हम दोनों भाई भाई दरिया पार करके सामने गांव में चलते हैं, जहां पर हरी हरी घास तुम खाना और मैं कोई अपना ताजा शिकार करूंगा। ऊंट ने गीदड़ की बात सुनकर दरिया के पार गांव की तरफ देखा। कहते तो तुम सही हो। सरसब्ज खेत और हरी हरी घास देखकर इसके मुंह में राल टपकने लगी थी। गीदड़ तो पहले ही तैयार था। उसने एक छलांग लगाई और ऊंट पर सवार हो गया। ऊंट दरिया के अंदर उतरा और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए तैरने लगा। थोड़ी देर में वो दरिया पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए। ऊंट ने जब मकई का खेत देखा तो बहुत खुश हुआ। अरे वाह 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 वाह, क्या मजे का खेत लग रहा है। इतनी मकई मैंने तो पहले कभी नहीं देखी थी। गीदड़ ने ऊंट के ऊपर से नीचे उतरने के लिए छलांग लगाई। ओ लो जी, हम भी चले मियाँ। और वो भी खेत में छुपे खरगोश और दूसरे परिंदों की खुशबू सूंघकर खुश हो गया। खुशबू आ रही है, लगता है यहाँ पे कोई मजे मजे के जानवर हैं। मकई का खेत देखकर ऊंट की भूख भी चमक उठी थी। गीदड़ मकई के खेत में छुपे खरगोश का शिकार करने में कामयाब हो गया था। वो भी फौरन शिकार खाने लगा। बहुत मजे का है। ऊंट ने खामोशी से मकई के पत्ते खाने शुरू कर दिए, मगर गीदड़, उसके तो हालात ही कुछ और थे। गीदड़ ने शिकार खाते हुए अपने मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी। ऊंट ने उसे आवाजें निकालने से मना किया। मत करो भाई, अच्छा नहीं लग रहा। लोग सुन लेंगे और हमारी तरफ बढ़ेंगे और हमें मारेंगे। मत करो। मगर वो शिकार खाने में इतना मगन हो चुका था कि उसे कोई बात अच्छी ही नहीं लग रही थी। ऊंट ने गीदड़ को उसके हाल पे छोड़ा और खुद अपना पेट भरने में लग गया। बहुत मजे की है। ऊंट अभी पूरी तरह से सैर नहीं हुआ था कि गीदड़ ने आदत से मजबूर होके खेत से अपना मुंह आसमान की तरफ किया और अपनी मखसूस आवाजें निकालने लगा। ऊंट ने उसको ऐसा करने से रोका तो गीदड़ ने कहा, पेट भरकर खाने के बाद ये आवाजें निकालना मेरी आदत है। अब मैं अपनी इस आदत से मजबूर हूँ भैया। ये कहकर गीदड़ ने फिर आसमान की तरफ मुंह किया और आवाजें निकालने लगा। गीदड़ की आवाजें सुनकर गांव के रहने वाले जो करीबी खेत में काम कर रहे थे, वो मकई के खेत की तरफ दौड़े। उनके हाथों में डंडे थे। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? देखो तो सही जरा, हमारे खेतों को कौन खराब कर रहा है? कौन खराब कर रहा है? देखो देखो देखो। ऊंट ने जब इन लोगों को अपनी तरफ आते देखा तो सख्त घबरा गया, क्योंकि ऊंट का जिस्म बहुत बड़ा और भारी था, इसलिए वो कहीं छुप नहीं सकता था। जबकि गीदड़ तो ऊंट की निस्बत बहुत छोटा जानवर था। वो चालाकी से खेत में छुप गया। देहातियों ने मकई के खेत में आकर ऊंट को डंडों से खूब मारा। ऊंट बेचारा अचानक इस मुसीबत से सख्त घबरा गया। वो अपने इलाके में वापस जाने के लिए दरिया की तरफ भागा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो, मैं जा रहा हूँ, खुदा के लिए छोड़ दो। देहाती भी इसके पीछे दौड़े, मगर ऊंट उनसे आगे निकल आया। ऊंट को दरिया की तरफ भागते देखकर गीदड़ भी उसके पीछे भागा। वो ऊंट के करीब जाके बोला, ऊंट भैया, मैं क्या करता,
पेट भरने के बाद आवाज़ें निकालना हमारी पुरानी आदत है। अब देहातियों ने हमको भगाने के लिए डंडों से हमला कर दिया है, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों अपने इलाके में वापस चले जाएं। ये कहकर गीदड़ ने एक छलांग लगाई और ऊंट की पीठ पर बैठ गया। ऊंट को गीदड़ की ये हरकत पर बहुत गुस्सा था। वो अब इसको सबक सिखाना चाहता था। इसलिए ऊंट ने बज़ाहिर मुस्कुराकर गीदड़ से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों इकट्ठे इस तरफ आए थे, इसलिए वापस भी इकट्ठे जाएंगे। गीदड़ ने ऊंट के जज्बात का शुक्रिया अदा किया और बोला, ऊंट भैया, तुम वाकई बहुत नेक मिजाज आदमी हो। ऊंट दौड़ता हुआ दरिया के पानी में उतर गया। वो तो पहले ही गीदड़ को मजा चखाने का सोच चुका था। इसलिए जब ऊंट दरिया की गहराई में पहुंचा तो दरिया में बैठने लगा। जब पानी गीदड़ तक आया तो गीदड़ ने ऊंट से ऐसा करने की वजह पूछी तो ऊंट ने कहा, जब हम खूब पेट भर के मकई के पत्ते खा लेते हैं तो पानी में चंद मिनट जरूर बैठते हैं। या गीदड़ बुरी तरह तड़प रहा था। ऊंट ने पानी में मजीद बैठते हुए कहा, तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ, ये हमारी आदत है। मैं अपनी इस आदत के आगे मजबूर हूँ। अगर मैं इस वक्त पानी में ना बैठा तो मेरा हाजमा खराब हो जाएगा। तुम तो खुद मेरी सेहतमंद जिंदगी को पसंद करते हो। गीदड़ इस सूरत हाल से सख्त घबरा गया, क्योंकि दरिया का पानी उसकी अपनी कमर तक आ गया था। गीदड़ ने ऊंट को उठने के लिए खूब मिन्नत समाजत की। भैया खड़े हो जाओ जरा, थोड़ी देर के लिए, मेरा तो दम घुट रहा है। मगर ऊंट को गीदड़ की खुदगर्जी पर इसे सबक सिखाना था। गीदड़ को तैरना तो आता नहीं था, इसलिए वो ऊंट की कमर मजबूती से पकड़े हुए था। ऊंट ने दरिया के पानी की गहराई में जाकर एक करवट ली तो गीदड़ दरिया के पानी में गिर गया। वो बुरी तरह रोया। ऊंट भैया, ऐसा ना करो, मैं गिर गया हूँ, मर जाऊंगा। मगर ऊंट ने गीदड़ को पानी में डूबते देखा तो बोला, ऐसे खुदगर्ज दोस्त का क्या फायदा, जो किसी दोस्त को मुसीबत में फंसाकर खुद छुप जाए। अब तुम भी क्या याद करोगे। ये कहकर ऊंट ने एक और डुबकी लगाई और गीदड़ पानी में डूबता चला गया। गीदड़ अपने बिछाए हुए जाल में खुद फंस गया। बच्चों, जो किसी का भला नहीं सोचता, आखिर वो खुद मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि जो कोई बोएगा वही काटेगा। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारों को शेयर भी कर लीजिएगा। सबक आमोज़ कहानियाँ और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल वर्ल्ड क्लासिक स्टोरीज से जुड़े रहिए और तरह तरह की नित नई सबक आमोज़ कहानियाँ सुनते रहिए। खुदा हाफिज़।